علماء کرام نے جو رول ادا کیا ہے وہ بلایا نہیں جا سکتا۔ اسی بات پر روشنی ڈالنے کے لیے میں آواز دیتی ہوں ہم جماعت کے مولانا ارشد کو کہ وہ یہاں آئیں اور یوم آزادی میں علماء کرام کا خطاب اس عنوان پر تقریر پیش کریں۔ تالیوں سے استقبال کیجیے ہمارے مہمان محترم ساون سر صاحب۔ آئیے سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسکول کے صدر ڈاکٹر عبید ساون صاحب تشریف لائے، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اڑائے کچھ برق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے، اڑائے کچھ برق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ سامعین کرام، حاضرین مجلس اور صدر جلسہ، آج کے اس تاریخی جشن آزادی کے موقع پر آپ حضرات نے جس عنوان کے لیے مجھے مقرر کیا ہے، حق بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، نہ میری زبان اس لائق ہے اور نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کروں۔ تاہم آج کے اس قومی یادگار کے دن میں، جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کا 71واں جشن منایا جا رہا ہے، غلام ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانی سنائی جا رہی ہے، مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، تو ایسے وقت میں ہمیں بھی ایک طرف اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہیں تو دعائیں مغفرت کے لیے ہاتھ خود بخود اٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں کے دردناک واقعات اور ظلم و ستم کی رودات سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و قابل کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ کبھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا جب مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی ہی کو پسند کریں گے تو وہ کبھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے جان دی ہے، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر سوٹ وارنٹ ہوا ہے، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں، جن میں 51,000 علماء کرام تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ایسا دن بھی آئے گا کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹیں گے، انہیں حقوق سے محروم کیا جائے گا۔ حضرات محترم، 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں 2 محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت
हजरत मौलाना जाफर थानेसरी के पास थी। दूसरा महाज शामिल पर जिसकी क़ियादत हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के पास थी। इस जंग में बड़े बड़े उलमा और सुलहा शहीद और जख्मी हुए। इसी जंग में मौलाना नानौतली जख्मी हुए। इसी जंग में हजरत गंगोही जख्मी हुए। इसी जंग में हाफिज जामिल शहीद हुए। इस 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में 2 लाख मुसलमान शहीद हुए, जिनमें 51,500 उलमाए किराम थे। सिर्फ दिल्ली में 500 उलमा को फांसी के फंदों पर लटका दिया गया। बहरहाल जब इस जंग में वसाइल की किल्लत और अपनों की गद्दारी की वजह से फिरंगियों का गलबा हुआ तो वायसराय बरतानिया ने अपने हिंदुस्तानी मुशीरों से राय तलब की कि बताओ हिंदुस्तान में तुम्हारी हुकूमत कैसे कायम रह सकती है। तो हिंदुस्तान में रहने वाले सबसे बड़े सियासतदान डॉक्टर विलियम जोर ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें लिखता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेदार मुसलमान है और जंग आज़ादी सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी। मुसलमानों में जब तक जज्बे जिहाद मौजूद है उस वक्त तक हम लोग उन पर हुकूमत नहीं कर सकते। इसलिए जज्बे जिहाद खत्म करना जरूरी है और जज्बे जिहाद खत्म करने से पहले एक और चीज का खत्म करना जरूरी है और वो ये है कि हिंदुस्तान से उलमा और कुरान को खत्म कर दिया जाए। 1861 ईस्वी में 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे बदबख्त अंग्रेजों ने जला दिए और उसके बाद उलमा के खत्म करने का फैसला किया। अंग्रेज मौलिक मिस्टर एडवर्ड थॉमसन अपनी याददाश्त में लिखता है कि 1864 ईस्वी से लेकर 1867 ईस्वी तक अंग्रेज ने उलमा को खत्म करने का फैसला किया और ये 3 साल हिंदुस्तान की तारीख के बड़े अलमनाक साल हैं। इन 3 सालों में अंग्रेज ने 14,000 उलमा को तख्ते-ए-दार पर लटका दिया। थॉमसन कहता है कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई ऐसा दरख्त न था जिस पर उलमा की गर्दनें न लटकी हुई हो। थॉमसन कहता है कि उलमा के जिस्मों को ताबे से दागा गया। थॉमसन कहता है कि उलमा को सुगरों की खालों में बंद करके जलते हुए तंदूरों में डाला गया। थॉमसन कहता है कि लाहौर की शाही मस्जिद जिसके सहन में अंग्रेज ने फांसी का फंदा बनाया था, सिर्फ एक दिन में 80 उलमा को फांसी दी जाती थी। थॉमसन कहता है कि लाहौर के दरिया रावी में 80 उलमा को बोरियों में बंद करके डाल दिया जाता और ऊपर से गोलियों का निशाना बना दिया जाता। थॉमसन कहता है कि जब मैं दिल्ली में अपने खेमा में गया तो मुझे मुर्दार की बदबू महसूस हुई। मैं खेमा के पीछे चला गया तो क्या देखता हूँ कि आग के अंगारे दहक रहे हैं और 40 उलमा को कपड़े उतार कर उन अंगारों पर डाल दिया गया। मेरे देखते देखते 40 और उलमा को बुलाया गया। मेरे सामने उनके कपड़े उतारे गए। अंग्रेज ने कहा, मौलवियों, जिस तरह इन 40 को पकाया गया है उसी तरह तुम्हें भी पका दिया जाएगा। तुम सिर्फ एक आदमी कह दो कि 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में हम शरीक नहीं थे, अभी छोड़ देते हैं। थॉमसन कहता है कि मुझे पैदा करने वाले के कसम कोई आलिम में ऐसा नहीं था। सारे के सारे आग में पक गए मगर किसी ने भी अंग्रेज के सामने गर्दन नहीं झुकाई। लाते मुहतरम, हुकूमत बरतानिया ने जब हिंदुस्तान पर गासिबाना सिक्का जमाया, इस्लाम को मिटाकर ईसाईयत की तबलीग शुरू की तो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। कई लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया गया जिनके घरों में हाथी झूमते थे, फूटा कटोरा लेकर दर दर की भीख मांगने पर मजबूर हो गए। शाही खानदान की बेगमात फटी चादरें सरों पर डालकर घरों में खाना पकाने की नौकरी करने लगी। वो पर्दा नशीन औरतें जिनके दीदार से चांद सूरज तरसते थे, दर दर की भीख मांगने पर मजबूर हो गई। हर तरफ तबाही और बर्बादी का दौर दौरा था। खून पानी की तरह बह रहा था। गली कोचों में नाचें इस तरह पड़ी थी कि दरिंदे और परिंदे दिन दहाड़े नोचते और खसोटते थे। मुसलमानों को खंजीरों की छालों में बंद किया जाता था तो हिंदुओं के मुंह में गाय का गोश्त ठूंसा जाता था। अलगर पूरी दास्तान खून से लबरेज है। नौजवान जियालो, एक नाकाबिल इनकार वाकया है कि हिंदुस्तान को आज़ादी से मुसलमानों ही ने सरफराज किया है। मुसलमानों ही की कुर्बानियों का सिला है कि आज हमारा मुल्क आज़ाद है और आज़ादी की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। लेकिन उसके बावजूद हमसे वतन पर दोस्ती का सवाल किया जा रहा है। हम बतला देना चाहते हैं इस मुल्क के दर्रे दर्रे पर हमारा हक है, इस देश के दर्रे दर्रे पर हमारा हक है। हमने इस धरती की आज़ादी के लिए लड़ा है और हम ही ने आबाद किया है। जब गुलिस्तान को खून की ज़रूरत पड़ी सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं हमसे पहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मोहतरम दोस्तों, आज हिंदुस्तान से हमारी तारीख को मिटाने की कोशिश की जा रही है।
मुसलमानों के नामों को जंग आज़ादी की तारीख से निकाला जा रहा है, हमारे कारनामों को भुलाया जा रहा है। और सितम वाला है, सितम ये है कि हमसे सवाल किया जाता है कि बताओ तुमने हिंदुस्तान को क्या क्या दिया है। ऐ मुहिब्बान वतन, जाओ हिमालय की बुलंदी से पूछो, गंगा की गहराई से पूछो, सरजमीन हिंद की शादाबी से पूछो, हिंदुस्तान के सहराओं से पूछो, आसमानों के तारों से पूछो, ये सब के सब तुम्हें बतलाएंगे कि हमने हिंदुस्तान को क्या क्या दिया है। ये सब के सब हमारी अजमत के गवाह हैं। हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा इस बात पर शाहिद है। बताओ हिंदुस्तान को कुतुब मीनार की बुलंदी किसने दी, जामा मस्जिद की पुरशिकबा इमारत किसने दी, लाल किला की अजमत किसने दी, ताजमहल की रानाई किसने दी। अरे 100 बार संवारा है हमने इस मुल्क के गए हुए बरहम को, 100 बार संवारा है हमने इस मुल्क के गए हुए बरहम को। ये अहले जुर्म बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपके कौन सी, क्या नाम आपका? मोहम्मद अरशद। कौन से मदरसे से हैं? दारुल इमदादिया। और यहाँ कौन सी क्लास में? यहाँ पे 9वीं में। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जिस अंदाज में, मैडम किस तरह से रहा इनका बॉडी लैंग्वेज और हर तरह से, अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत बेहतरीन मुकर्रिर हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह जो आपका जो ये बताने की जो अंदाज़ बयान भी बहुत प्यारा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये शायर भी हैं? ये शायर भी हैं? अरे वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, ये तारीख को दोहराई जाती है, लेकिन आज अब इसके बाद क्या करना है, अभी हालात तो आए, हालात जो बोले जा रहे हैं उसके ऊपर क्या करना है, हमारे ये लोग भी बताएंगे। नौजवान लोगों के लिए आगे की उमंगें कौन सी लेने के, हौसले कैसे, अज़ाइम कौन से रखने, वो भी तरबियत देनी चाहिए। अब जो हुआ आगे क्या करना है उसके ऊपर अमल करना जरूर है।